Good morning, everyone. We are going to start with the next chapter of bio, that is chapter 7, control and coordination. Actually, in that chapter 6, life processes, we have discussed about all those processes which are required for, you can say, sustaining or maintaining life in living organisms. Okay. And one important, like a life, you can say, when we see the things moving, we discuss that thing that if the things are moving, we consider them as like एक living organism का एक characteristic feature है कि they can move from one place to another place, or in case of plants they also show certain movements, like plants they grow and they increase their size. Most of time plants also show some different movements, like they turn towards sunlight, and some plants are there when we touch them, so they like leaves unki ek sath ikkathi ho jati hai. So this is a kind of movement which plants show in response to certain stimulus. And lower classes also you have done this thing, that when we provide a kind of change in atmosphere or surroundings of a particular living being, तो उन changes के according वो living being उसको respond करता है. तो always a response is produced, you can say, और एक movement produce होता है उस stimulus के response में. तो stimulus क्या होते हैं जो हम changes दे रहे हैं. For example, if someone you can say pricks a needle on your skin na somewhere, तो you instantly remove your hand, sorry, arm, whatever, जहाँ पर भी आपको किया है prick. तो it depends कि अगर आपको external stimuli provide किए जा रहे हैं किसी भी living body को, तो living body में अपने आप उसके against कुछ response start हो जाता है उसी time पे, and we move our hand or wherever we are finding that particular stimulus. तो इस तरह के ये ऐसे movement है जो growth से related नहीं है, but for example when we are running, when we are moving, when we are talking, और हमें ये भी पता है कि हम मतलब एक तरह का thought process हमारे body के अंदर चलता है, that help us to know that कभी हम बहुत ज़्यादा अगर required है तो shout भी करते हैं, और जब इस तरह का atmosphere होता है तो we just speak softly, और मतलब क्लास में आप लोग बैठे हो आपस में बात करते हो तो you just whisper about things ना. तो it depends कि आप सोच समझ कर किस तरह से काम कर रही है आपकी बॉडी. और whenever you get a external stimulus, for example आपकी बॉडी कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया आपका हैंड, तो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि यू जस्ट रिमूव योर हैंड. तो ये सारे प्रोसेसेस जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, but all these movements are actually causing because of a response to stimulus. So these kind of things, all different movements, like जो voluntary movements है वो भी plus involuntary movements, all of these are actually controlled and coordinated by you can say our nervous system. So in that chapter we discussed about other processes like digestion, excretion, transportation and रेस्पिरेशन. बट उनमें भी जितने ऑर्गन्स हैं आपस में वो काम किस तरह से कर रहे हैं, मीन्स ऑल दीज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर working in a coordinated manner. That is all because of our nervous system. Every organ of our body is connected with the help of, you can say, nerves to our brain, और brain से ही messages हर एक जगह पर. और actually there are two you can say कंट्रोल जो हमारी बॉडी कर रही है सारे फंक्शंस को एक साथ, उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में. फर्स्ट इज आवर नर्वस सिस्टम, जो यू कैन से नर्व्स के थ्रू एवरी सेल्स तक मतलब मैसेजेस को कन्वे करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है, कि हम किसी भी सेंसरी ऑर्गन से मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से फिर वापस मसल्स तक आते हैं, तो आर मसल्स मूव इन रिस्पॉन्स टू दैट मैसेज. ठीक है. और दूसरा एक चीज जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है वो है हमारे केमिकल्स. कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में बाय सम
glands which are known as actually endocrine glands. So these endocrine glands release certain chemicals which are responsible for growth related movement in our body. जो हमारी body जो grow कर रही है, hormones are helping that to grow. Similarly, in like higher organisms like humans and some other higher animals, nervous system and chemicals in the form of hormones are responsible for maintaining overall control and coordination. Okay, but in plants there is no nervous system, but still you can see plants show certain typical movements. जैसे आपको मैंने अभी बताया touch me not plant, जिसको हम माइमोसा है उसका biological name, that plants response when you touch its leaf ना, और भी ड्रूप कर जाते हैं plants. Some plants have they sunlight होती है तो they are like fully flowers जो है वो पूरे bloom किए हुए होते हैं. And when sunlight, जैसे sunflower का ही आपने example देख लो, it turns towards the sun, तो roots हमेशा ground की तरफ ही move करती हैं और stem हमेशा sunlight की तरफ move करता है. तो ये सारे जो movement है, these are actually because of certain chemicals present in plants. तो plants में सिर्फ chemical control and coordination हो रहा है, वहां पर कोई nervous system नहीं है movements को control करने के लिए. But in our body or in other higher animals, there are two you can say processes carrying out. One is nervous system जो ये सारा control coordination का काम कर रहा है, and second is chemical control that is in the form of hormones. तो plants में सिर्फ chemical control and coordination है, but in our body we have nervous as well as chemical, both type of control and coordination. तो ये पूरा chapter बेटा 3 parts include है इसमें. First one, human nervous system. Second is the control and coordination in plants with the help of certain chemicals. And थर्ड पार्ट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में हो रहा है. ठीक है, तो मेनली दीज 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. तो ये इंट्रोडक्शन ये मूवमेंट से रिलेटेड ही है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नॉट ओनली ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट आर सीन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट सर्टेन अदर मूवमेंट्स लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग, व्हेन यू आर रनिंग, व्हेन यू आर sleeping or swinging, whatever other movements are also there. So every type of movement is controlled by certain you can say processes taking place in our nervous system. So that first of all we will discuss about nervous system of animals, mainly human beings. ठीक है, और आपने इसके लिए पढ़ा है कि nervous system is made up of a specific type of cell which is known as nerve cell or a neuron. तो दिस इज अगेन एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का. न्यूरॉन इज लाइक इस तरह का एक ब्रांच का स्ट्रक्चर है. लॉन्गेस्ट सेल होती है ये हमारी बॉडी की, बिकॉज इट्स मैसेजेस, इट्स फंक्शन इज टू कैरी मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इट हैज मेनी ब्रांचेस, और ये मेन सेल बॉडी है विच इज नोन एज जिसको साइटन कहते हैं, CYTON. The cyton contains nucleus and various other cell organelles as well. And ये जो branches आप cyton पे देख रहे हो, these branches are known as dendrites, and these are very important parts. These tips are very important for these nerve cells because these are actually working as receptors. मतलब हमारी जहां जहां पे senses हैं, like nose, eyes, your tongue, your skin and your ears. These 5 organs you have, और इन 5 organs के अंदर जैसे आप कोई भी चीज स्मेल करते हो, whenever you feel certain kind of smell, चाहे वो flowers की स्मेल है, परफ्यूम की स्मेल है, किसी फूड की स्मेल है, तो these actually nerves are everywhere in our body. तो नोज में जो आपकी नर्व सेल्स हैं उनके डेंड्राइट्स ये जो काम करते हैं रिसेप्टर का. रिसेप्टर मींस दे रिसीव स्टिमुलाई. स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का होता है. और इन रिसेप्टर्स के नेम भी अलग अलग है. व्हेन दे आर प्रेजेंट इन आवर टंग देन दे आर नोन एज गस्टेटरी रिसेप्टर्स. व्हेन दे आर प्रेजेंट, इफ द नर्व सेल्स व्हिच are present in our nose to feel the smell, they are known as olfactory receptors. The gustatory are present on our taste. Auditory हमारे eyes के अंदर हैं. तो सिमिलरली अलग अलग नेम है इनके रिसेप्टर्स के. और रिसेप्टर्स हैं सभी डेंड्राइट्स, मतलब जो नर्व सेल रिसीव करता है जो पार्ट में बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, दैट इज डेंड्राइट. अब डेंड्राइट से वो मैसेज यहाँ पर
सेल बॉडी में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ और एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, मतलब जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है नॉर्मली इलेक्ट्रिक वायर्स में से, तो यही काम हमारी नर्व सेल्स करती हैं। दे जनरेट अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स विच पासेस थ्रू दिस एक्सॉन, और एक्सॉन से आगे ये जो नर्व एंडिंग्स पे आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, these nerve endings transfer this message in the form of electric impulse to another nerve cell। क्योंकि आपको मैंने 9th में भी बताया था कि ये नर्व सेल्स एक के साथ एक कनेक्टेड किस मैनर में रहती है कि एक का डेंड्राइट वाला पार्ट या सेल बॉडी जो है वो दूसरे की नर्व एंडिंग के साथ कनेक्शन में होता है। मतलब इसके बाद जो नर्व सेल आएगी, न्यूरॉन आएगा, उसका डेंड्राइट यहाँ होगा, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, फिर डेंड्राइट, मतलब इसी सीक्वेंस में ये प्रेजेंट होती है। एंड मैसेज का जो कंडक्शन है through these nerve cells is also taking place in just one direction, means receptor से ये message axon में आ रहा है, axon से फिर nerve ending पे, nerve ending से next में, तो ये one directional होता है in these जब message receptors sense organ से brain तक जाना है, और जब brain से जो nerve cells message को वापस muscles तक लेकर आएंगी, तो muscles जैसे अब hands nose ने ये स्मेल करना है कोई चीज, तो पहले मैसेज यहाँ से ब्रेन तक जाएगा, उसके बाद ब्रेन अपना जो मतलब इंटरप्रेट करेगा उस चीज को, उसका मैसेज वापस नोज तक पहुंचेगा। तो वो जो वापस लेकर आ रही हैं नर्व सेल्स, उनका जो मतलब ऑर्डर होगा, अरेंजमेंट, वो ऑपोजिट होगा, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैसेज ब्रेन से लेकर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट चलेगा, और जो न्यूरॉन्स किसी सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक उस मैसेज को लेकर जाती हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको हम रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। और जनरली जो हैं वो वाले न्यूरॉन्स मैसेज को कन्वे करने का काम करते हैं। ठीक है, और दूसरे जो न्यूरॉन्स वापस उस मैसेज को लेकर के आ रहे हैं आपकी, लाइक यू कैन से, एक डायग्राम यहाँ पर है, एक सेकेंड। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हैंड है आपका, तो यहाँ से जो रिसेप्टर्स हैं, जब भी आप किसी चीज को टच करते हो, चाहे हॉट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट, आपको कैसे पता लगता है हॉट एंड कोल्ड है? जो न्यूरॉन्स इस मैसेज को कैरी करते हैं टुवर्ड्स नर्वस सिस्टम, चाहे वो ब्रेन है, अभी आपको मैं आगे बता रही हूँ कि ये एक्चुअली दिस इज अ यू कैन से रिफ्लेक्स आर्क, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बनती है, बट इस तरह के ही मैसेज इसी तरह से कन्वे होते हैं, चाहे ब्रेन तक कन्वे हो या आपके स्पाइनल कॉर्ड तक कन्वे होते हैं। तो ये उन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में 3 टाइप के हैं। वो न्यूरॉन्स जो आपके सेंस ऑर्गन से डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कनेक्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन आपका जो लाइक हेड के अंदर, स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, दैट इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, और उसके अलावा एक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। आपकी जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर एक नर्व्स की यू कैन से कनेक्शन है पूरा ये नर्व्स का, दैट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड योर स्पाइन। स्पाइन आपकी बैकबोन है, और स्पाइन के अंदर ये पूरा नर्व्स का एक कनेक्शन है, दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बोथ ऑफ दीज are the major organs of your central nervous system। और central nervous system मतलब आपका जो टोटल नर्वस सिस्टम है, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी सारे नर्व्स। ठीक है, जो नर्व्स कन्वे कर रही हैं इस मैसेज को ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये नर्व्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, एंड नर्व सेल्स न्यूरॉन्स 3 टाइप के हैं आपकी बॉडी में। एक वो है जो रिसीव करते हैं मैसेज को बाहर एक्सटर्नल सराउंडिंग से, उन नर्व्स को हम कहते हैं, और उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ तक ये सेंसरी न्यूरॉन चल रही है, यहाँ से फिर इसने मैसेज को कन्वे किया रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन एक्चुअली ये मैसेज जाएगा पहले स्पाइनल कॉर्ड, आगे ब्रेन तक भी भेज देता है। अगर जरूरत है थिंकिंग प्रोसेस की तो ब्रेन तक जाता है, बट इफ थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन responses, then spinal cord itself send you can say response to
these motor neurons. Motor neurons कौन से neurons हैं? जो central nervous system से response का message लेकर आते हैं और muscles तक, या जिस part ने भी वो movement करना है उस part को मैसेज देते हैं कि आपने, मतलब स्किन जैसे हैंड तक, हैंड की जो आर्म की जो मसल्स हैं, दे विल कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलाई, कि आपने जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आपका हाथ उसी टाइम हट जाता है. दिस इज बिकॉज कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स आपका इस मैसेज, क्योंकि ये ऐसा रिस्पॉन्स है जिसके लिए इंस्टेंट ऐसा स्टिमुलस है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना या किसी ने आपको पिन चुभा दी, तो ये जो एक्शंस हैं, ये जो स्टिमुलस आपको मिल रहे हैं, इनका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होना चाहिए. क्योंकि अगर सपोज करो आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है और इसका मैसेज ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन फिर एक थॉट प्रोसेस के बाद उसका रिप्लाई दे रहा है, तो इट विल टेक टाइम, और इतना टाइम होगा, लग जाएगा उसमें कि आपका हाथ कुछ तो बर्न हो ही जाएगा. बट you instantly remove your hand after touching some hot object. This is because ऐसे जो instant actions होते हैं हमारी बॉडी, जिसके लिए थिंकिंग प्रोसेस, आप सोचते थोड़ी ना, आप उसी टाइम हैंड हटा लेते हो, तो दैट इज बिकॉज कि ब्रेन इज जनरली नॉट इन्वॉल्व. मैसेज जा रहा है ब्रेन को, बट इट इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट. ओनली द स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है वो कंट्रोल कर रही है इन एक्शंस को, क्योंकि इन एक्शंस को इंस्टेंट होना है. तो यू रिमेंबर इंस्टेंट रिफ्लेक्स actions in which thinking process is not required, or requirement होनी भी नहीं चाहिए, because otherwise it will take time. तो these are controlled by our spinal cord. और spinal cord के अंदर ये जो पूरा एक आपको देख रहे हो, sensory neurons मैसेज लेके जा रहे हैं spinal cord से, और motor neurons ये spinal cord से वापस मैसेज ला रहे हैं कि आपकी आर्म्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी and your hand will be removed automatically. आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने हाथ हटा लिया. तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. ऐसे जितने भी एक्शन है जिसके लिए आपका माइंड सोच नहीं रहा है और वो अपने आप हो जाते हैं इंस्टेंटली. स्नीजिंग हो गई आपकी, यॉर्निंग, जब आपको नींद आती है तो उबासियां लेते हो, तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, तो अपने आप होते हैं. ये रिफ्लेक्स एक्शंस है. कोई भी स्टिमुलस आपको बाहर से ऐसा मिलता है जिसकी स्मेल आपके नोज को, मेम्ब्रेन को इतना इरिटेट कर देती है कि आपको स्नीज स्टार्ट हो जाती है. स्किनी लोगों को ज्यादा होती है, एलर्जी प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है. तो स्नीजेस आर आल्सो इन नॉट इन आवर कंट्रोल ना. वो ये ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो अपने आप आपकी बॉडी इंस्टेंट रिस्पॉन्ड कर रही है उन बाहर से मिले हुए स्टिमुलस के अगेंस्ट, दोज आर कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है आपके ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को. और ये जो एक तरह का आर्क बन रहा है, सेंसरी ऑर्गन को और मोटर न्यूरॉन से वापस मैसेज आना, इन बिटवीन यू कैन सी दिस पार्ट विच इज नेम्ड एज रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स हैं जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स पास दिस मैसेज टू रिले न्यूरॉन, और फिर साथ में थिंकिंग प्रोसेस के लिए ब्रेन को जाता जरूर है, बट रिफ्लेक्स एक्शन है अगर, तो ब्रेन उसके लिए चाहे चल भी रहा है वहां पे थिंकिंग प्रोसेस, बस उससे पहले ही रिस्पॉन्स का काम जो कर रहा है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स मैसेज थ्रू दिस मोटर न्यूरॉन्स. तो ये चीज नाम आपको याद रखना है. सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाते हैं. रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, एंड मोटर न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम हियर. यहाँ से भी इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू आया और इसने भी अपना जो रिस्पॉन्स देना है, दैट इज ड्यू टू दीज मसल्स. तो मसल्स या जो कोई ग्लैंड्स हैं जिन्होंने कुछ सिक्रीट करने हैं हार्मोन्स या एंजाइम्स, जैसे आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वो किस अपने आप एंजाइम सिक्रीट होते हैं, दैट इज बिकॉज मैसेज इज कन्वेड फ्रॉम योर ब्रेन कि अब ये जरूरत है इस एंजाइम की पर्टिकुलर, आपको भूख फील होती है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स आर जनरेटेड इन योर बॉडी इन दैट टाइम. ठीक है, इवन आपके ये जो नर्व कंडक्शन है इसमें भी कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं विच आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक सेंसरी न्यूरॉन्स आपस में सारे कनेक्टेड है, बट एक्चुअली दीज न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली. इनके बीच में एक गैप रहता है. यू कैन सी हियर गैप, इन्होंने पूरा दिखाया नहीं हुआ, यहाँ पे डायग्राम नहीं है, बट एक्चुअली जब ये इमेजिन करो अगर इस न्यूरॉन के बाद एक और न्यूरॉन होगा तो इसके डेंड्राइट्स और इसकी नर्व एंडिंग्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है. दैट गैप इज एक्चुअली नोन एज साइनेप्स. टर्म इज देयर इन चैप्टर, थोड़ा सा बाद में आएगी, मैं आपको नेम लिख के बता देती हूँ. साइनेप्स कह दो या सिनेप्स कह दो. द साइनेप्स इज अ गैप विच इज प्रेजेंट between
the dendrites and nerve endings of two nerve cells. इस नर्व सेल के नर्व एंडिंग और दूसरी जो नर्व सेल आगे आएगी उसके डेंड्राइट्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, मींस दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, आपस में बिल्कुल जुड़े नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े गैप पे प्रेजेंट होते हैं, दैट गैप इज नोन एज साइनेप्स. अब क्या होता है, जैसे ही मैसेज डेंड्राइट्स के थ्रू नर्व एंडिंग तक आता है वो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में. अब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो कब होता है, जब कनेक्शन होगा, बट नेक्स्ट न्यूरॉन इज नॉट कनेक्टेड टू दिस वन. तब क्या होगा, ये जो साइनेप्स वाला एरिया है, जो गैप है, यहां पर नर्व एंडिंग्स के थ्रू कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं. दोज केमिकल्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स दे कैरी दैट इलेक्ट्रिक इंपल्स और वो उसको एक केमिकल की फॉर्म में, एक सेकेंड में इसका ये टर्म लिख दूं, these are called as neurotransmitters. These chemicals are secreted from these nerve endings in this area, which is, you can say, a gap between next neuron and the previous neuron. एंड इस गैप में वो केमिकल की फॉर्म में सिक्रीट होगा और उसके डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेंगे और डेंड्राइट्स के रिसीव करते ही वो केमिकल मैसेज वापस इलेक्ट्रिक इंपल्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं. एंड दैट इलेक्ट्रिक इंपल्स इज ट्रेवल्ड थ्रू दी नेक्स्ट नर्व सेल. फिर उस नर्व सेल की नर्व एंडिंग भी केमिकल सिक्रेट करेंगी. तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन जो है या ट्रांसमिशन जो है उस मैसेज का इसी तरह से ब्रेन तक जाता है या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वहां से वापस फिर जो आपके मसल्स तक आ रहा है. तो मसल्स के साथ इस तरह से नर्व सेल्स कनेक्टेड रहती हैं. For that you can go through this next diagram, how our muscle cells or glands are connected with these nerve cells. ये हमारे, क्योंकि मैसेज जब वापस आना है यहाँ तक तो एक्सॉन जो है उसकी नर्व एंडिंग्स हमारे मसल फाइबर से कनेक्टेड रहेंगी. आई टोल्ड यू दिस थिंग कि सेंसरी ऑर्गन से डेंड्राइट्स कनेक्टेड रहते हैं और सेंसरी नर्व्स जो है उनकी डायरेक्शन डेंड्राइट्स टू नर्व एंडिंग इस तरह से रहेगी. और वापस जो मसल मैसेज कैरी कर रही हैं मोटर न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स जो हैं वो कनेक्टेड रहती है आपके मसल फाइबर से या जिस चीज ने भी रिस्पॉन्स देना है. एंड दिस कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज neuromuscular junction. Each and every muscle of our body, whether it is a voluntary muscle or involuntary muscle, they are connected. क्योंकि आपको लगता है कि involuntary action जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे आपका डायफ्राम मूव कर रहा है, डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है फॉर योर ब्रीदिंग प्रोसेस. तो ये अपने आप होना भी ब्रेन का ही कोई पार्ट उसको काम कर रहा है. मतलब एवरीथिंग इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इफ इट इज रिलेटेड टू अ मूवमेंट ऑफ मसल. कोई भी मसल, चाहे वो वॉलंटरी मसल है, इनवॉलंटरी मसल है, or these all functions of movement are controlled by certain part of brain that we will discuss later in chapter structure of brain में कि कौन सा पार्ट ब्रेन में अलग अलग जोन्स हैं, डिवाइडेड है. थिंकिंग प्रोसेस कहीं और चल रहा है, नोज की जो इम्पल्स जा रही है वो उसके लिए अलग लोब है हमारे हेड में, आईज से मैसेज अलग लोब में जाता है. तो एरियाज आर डिवाइडेड इन आवर हेड ब्रेन for carrying out all these processes. ठीक है, तो this is how these यहाँ पर आपका these chemicals cross the gap or synapse and start a similar electric impulse in a dendrite of the next neuron. So this entire paragraph is what I explained. ठीक है, तो information मतलब जो आपको कोई भी stimulus मिल रहा है, that is acquired at the end of dendritic tip of a nerve cell, sets off a chemical reaction that creates an electric impulse, and this impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of axon, the electrical impulse sets off the release of certain chemicals जिनको हम neurotransmitters भी कह सकते हैं. Here name is not given but you can write. These chemicals cross the gap or synapse. तो वो जो gap वाला एरिया है वहां से electric impulse तो ट्रांसफर नहीं हो सकती है, but this message is transferred in the form of chemicals known as neurotransmitters. And then further these are received by dendrites and again a chemical reaction starts which produces a similar electric impulse in the dendrite of the next neuron. And this is a general scheme of how neurons or nerves impulse travel in our body.
Similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells or gland. मतलब ग्लैंड्स जिन्होंने सिक्रीट करने हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम्स, दो ही तरह की ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, इनके अंदर से भी सिक्रीशन जो है इनको मैसेज मिलने पर ही होता है. तो दे आर आल्सो कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ नर्व्स. और दूसरी हमारी मसल सेल्स, क्योंकि सारी जगह जो आप मूवमेंट कर रहे हो दैट इज ऑल बिकॉज मसल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड मसल्स आर वर्किंग इन रिस्पॉन्स टू दैट impulse which is received by them with the help of neurons. ठीक है, क्लियर हो गया. और मैसेज इनके रिस्पॉन्स के लिए ब्रेन से आता है. तो जो इंस्टेंट एक्शंस हो रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, और जो बाकी के वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन. So it is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electric impulse from one part of body to another. ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करने हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड. तो विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन एक्वायर्स इंफॉर्मेशन? यस, which part of neuron acquires information from external surroundings? External surroundings से जो भी stimulus मिल रहा है वो stimulus न्यूरॉन का कौन सा पार्ट रिसीव करता है या एक्वायर करता है? Can anyone tell? Ma'am, dendrites. And which part is that through which information travels as an electric impulse? एक्सॉन कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा एक्सॉन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है आपकी नर्व सेल का, तो उसके थ्रू पूरा एक वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होगा. एंड वेयर दिस इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन. Nerve ending. नर्व एंडिंग्स. नर्व एंडिंग्स पे ये इंपल्स कन्वर्ट हो जाती है केमिकल सिग्नल की फॉर्म में, जो नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट करेगी. और नेक्स्ट न्यूरॉन का कौन सा पार्ट फिर इस केमिकल सिग्नल को रिसीव करेगा? अगेन डेंड्राइट. रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का ही है, और नेक्स्ट ट्रांसमिट करने का काम केमिकल की फॉर्म में किसी भी पार्ट को, वेदर मसल्स और ग्लैंड, इट इज डन बाय नर्व, जो लास्ट की एंडिंग्स है आपकी. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट दीज. एक ये एक्टिविटी, some sugar in your mouth, how does it taste? शुगर का टेस्ट आपको सबको पता है, स्वीट इन टेस्ट. ब्लॉक नोज बाय प्रेसिंग इट. थोड़ा सा नोज को थोड़ी देर प्रेस करके अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से, उसके बाद दोबारा से शुगर को टेस्ट करके देखो. यू फील सम डिफरेंस. मतलब आपको उतना अच्छा सा स्वीट टेस्ट नहीं आएगा. कई बार तो अगर कोल्ड हुआ और अभी तो ये कोविड के केस में तो जिनको भी कोविड हुआ है, मेनी लाइक 80% पीपल दे feel this thing that they have lost sense of taste and smell as well. ठीक है, बिकॉज जब नोज ब्लॉक हो जाता है ना, रीजन क्या है कि एक्चुअली कोल्ड, नॉर्मल कोल्ड में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो वायरस है, राइनो वायरस व्हाटएवर, वो भी काफी कंजेस्टेड कर देता है नोज को, कोल्ड, नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू में भी. और कोविड वाला भी जो वायरस है ये भी नोज को ब्लॉक करता है. तो जब आपका नोज ब्लॉक हो जाता है बाय एनी रीजन, नॉट दैट कि कोविड के केस में, एनी कोल्ड, आप खुद भी ब्लॉक करके थोड़ी देर के लिए अगर एक्टिविटी कर रहे हो, तो नोज ब्लॉक होने से क्या होता है, आपके नोज के जो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज कर पाते हैं, और आपको जो फूड का फ्लेवर आता है ना, वो फ्लेवर के लिए टेस्ट टंग की वजह से ही नहीं आता. आपका काफी हद तक फ्लेवर स्मेल एंड टेस्ट दोनों मिलकर के देते हैं आपको. मतलब किसी भी फूड का कंप्लीट फ्लेवर is you feel due to its taste and smell both. क्लियर, नॉट ओनली की टेस्ट. टंग तो आपकी अपना काम कर रही है उस टाइम पे भी, बट नोज वाले जो रिसेप्टर्स हैं जो उसकी फ्रेग्रेंस, उसका फ्लेवर रिसीव ही नहीं कर पा रहा, तो वो चीज ब्लॉक हो जाती है, तो कंप्लीट टेस्ट आपको नहीं आता. क्लियर. तो दिस इज व्हाट कि आपका जो नोज ब्लॉक होना आपके टेस्ट को भी ब्लॉक कर, मतलब एक तरह से चेंजेस ले आता है टेस्ट के लिए भी. This small simple activity you can relate it with when our nose is blocked, so the messages
for smell are not received by the receptors present in, क्योंकि वो जब mucus fill हुई हुई होती है तो वो receptors अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर पाते, and the complete and taste or you can say flavor of food is experienced only by both of these senses, smell और taste दोनों मिलकर के आपको complete flavor देते हैं food का, ठीक है। अदरवाइज तो आपकी टंग पे भी रिसेप्टर्स हैं जो स्वीट सॉल्ट, आपने पढ़े हैं लोअर क्लासेस में कि ये एरिया आपके टंग पे स्वीट टेस्ट दे रहा है, सॉल्टी दे रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट तो आपकी टंग भी करती है, बट बहुत सारे फ्लेवर्स ऐसे हैं जो आपकी टंग आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, दे आर आइडेंटिफाइड बाय योर नोज विद द हेल्प ऑफ स्मेल। तो जब नोज ब्लॉक होता है तो वो जो सेंसेस हैं उनके रिसेप्टर्स जो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एट दैट टाइम, और उस टाइम पे आपके वो मैसेजेस ब्रेन तक नहीं जा पाते, तो यू आर अनेबल टू फील द एंटायर फ्लेवर ऑफ द फूड। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने आपको थोड़ा सा तो बता दिया, रिफ्लेक्स एक्शन में मतलब जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आपकी बॉडी करती है। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन in response to some stimuli in environment. We say, I jumped out of the way of the bus reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly, or I was so hungry that my mouth started watering reflexly. तो ऐसे actions जो आपके thinking के बगैर अपने आप हो जाते हैं, तो common idea in all such examples is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reactions. Yet these are situations where we are responding with some action to changes in environment. So these response actions are controlled by, ये मैंने आपको explain तो कर दिया था इसका पूरा reflex arc, because such actions require immediate response, and immediate response is, अगर आपके brain तक जाएंगे ये messages तो it will take time, और उस time पे hurt हो सकता है उस person को, क्योंकि किसी ने कुछ प्रिक कर दिया, आपको इंजेक्शन वगैरह कुछ भी लगता है, मींस आप एक सडन सा जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देती है, दैट इज ड्यू टू दैट दीज रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो एक चीज आपको थोड़ा सा अभी मैं ये रीकैप के लिए बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो आपकी बॉडी आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, और केमिकल कंट्रोल जो है वो हो रहा है आपके एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। और नर्वस सिस्टम जो है हमारा, इट इज मेड अप और यू कैन से क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बुक में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उन्होंने बीच बीच में ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंटेनिंग ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेन जो है ब्रेन करता है सारा कंट्रोल, जहाँ थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, टॉकिंग कर रहे हो, नो कुछ स्मेल कर रहे हो, ऑल दीज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। ओनली द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, जिसके लिए थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब जो इन दोनों मेजर ऑर्गन्स जो हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, उनसे मैसेजेस को कन्वे करना या वहां तक मैसेज को लाना, वो भी तो जरूरी है, नहीं तो ये दोनों का काम करने का फायदा क्या अगर मैसेज रिसीव ही नहीं कर पाएंगे ये। तो दैट इज डन बाय नर्व्स। तो मतलब a number of nerves are you can say scattered in our body। हर एक जो ऑर्गन है उसके अंदर, टिश्यूज के अंदर हमारी नर्व्स कनेक्टेड हैं। और नर्व्स आपको मैंने बता दिया 3 टाइप्स के नर्व्स या न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में। नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स आर 3 टाइप्स। तो सेंसरी नर्व्स में जो न्यूरॉन्स होंगे उनका अरेंजमेंट होगा कि वो डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से डेंड्राइट्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और उनकी जो डायरेक्शन होगी इस मैसेज को कन्वे करने की फ्रॉम दिस योर सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स ब्रेन। और फिर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, जो आपकी मोटर नर्व्स कैरी करके ला रही मैसेज को वापस, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनमें डेंड्राइट्स इस तरफ होंगे ब्रेन की तरफ, और उनकी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो मसल्स से अटैच होती हैं, क्योंकि उन्होंने जो मैसेज कन्वे करना है वो मैसेज मसल तक पहुंचना है, और ये जो मैसेज कन्वे कर रही हैं वो ब्रेन को कर रही हैं। तो चलना यूनिडायरेक्शनल, ये मतलब यहाँ से गया मैसेज और यहाँ से वापस मोटर तक, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बट उसके लिए न्यूरॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मैसेज ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ न्यूरॉन
फ्रॉम डेंड्राइट्स टू नर्व एंडिंग। तो अब सेंसरी न्यूरॉन्स की जो डायरेक्शन अरेंजमेंट है वो डेंड्राइट्स टू नर्व एंडिंग है, मतलब डेंड्राइट्स आर लोकेटेड इन योर सेंस ऑर्गन एंड नर्व एंडिंग्स आर लोकेटेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस वो ब्रेन तक कनेक्ट करेंगे। और ब्रेन से जो नर्व्स न्यूरॉन्स मैसेज को कन्वे करके वापस उस सेंस ऑर्गन की मसल्स तक लाएंगे, उनकी डायरेक्शन होगी कि यहाँ पर डेंड्राइट्स है और नर्व एंडिंग इस तरफ अटैच्ड होगा आपकी मसल से या आपकी ग्लैंड से या जिसने भी रिस्पॉन्ड देना है, क्योंकि मूवमेंट का रिस्पॉन्स तो मसल्स के थ्रू ही आता है। तो मसल्स से ये मोटर न्यूरॉन्स के जो नर्व एंडिंग्स हैं दे विल बी कनेक्टेड थ्रू दीज मसल्स बाय न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। वहां पर भी वही इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में मैसेज कन्वे होगा, उसके बाद केमिकल रिलीज होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो इम्पल्स है वो इस तरह से मैसेज को कैरी करती है। इट इज क्लियर नाउ, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू मेजर पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system contains two these organs, brain and spinal part near spinal cord. Brain is present inside our head, protected by a brain, उसको bony box कहते हैं हम, cranium, और spinal cord is present in our बैकबोन, मतलब बैकबोन उसको प्रोटेक्ट कर रही है, बैकबोन को हम स्पाइन कहते हैं। स्पाइन इज प्रोटेक्टेड दिस बिकॉज ये टिश्यू जो है नर्वस टिश्यू जिससे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बने, दे आर वेरी वेरी डेलिकेट पार्ट। तो इन डेलिकेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम स्कल जो हमारा है के अंदर वो कर रहा है। स्कल को हम कहते हैं, मतलब जो बोनी बॉक्स या स्कल या क्रेनियम कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म। उसके बाद एक फ्लूइड होता है विच मतलब क्रेनियम के नीचे एक फ्लूइड होता है विच इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं उसको। दैट फ्लूइड एक तरह का शॉक, मतलब आपका ब्रेन कवर्ड बाय दैट स्कल और ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट फ्लूइड हेल्प्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। अगर कोई इंजरी होती है तो डायरेक्ट ब्रेन डैमेज होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि स्कल पहले वो एक्सपीरियंस करेगा, उसके बाद वो फ्लूइड है उसके थ्रू इतना इम्पैक्ट नहीं जाता ब्रेन तक। बट स्टिल इफ द इंजरी इज वेरी, यू कैन से लाइक बहुत ज्यादा फोर्स के साथ है, देन इट कैन डैमेज ब्रेन एज वेल। और दूसरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर स्पाइन, प्रोटेक्टेड बाय स्पाइन। और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों का काम क्या है, मैसेजेस को रिसीव